نکالتے ہیں مگر مجھے ان سکوں کی کھنک میں جلتے ہوئے کوئلوں کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ اس رات کی خاموشی آج بھی میرے کانوں میں چیخ بن کر گونجتی ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے ایک اجنبی کی بلی چڑھا رہے ہیں، مگر ہمیں خبر نہیں تھی کہ ہم نے اپنے ہی کلیجے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا ہے۔ وہ دولت جس کی ہوس نے ہمیں اندھا کر دیا تھا، وہ سام بن کر ہمارے گلے کا توق بن گئی۔ اگر وہ منحوس رات نہ آتی اور دروازے پر وہ دستک نہ ہوتی تو آج میں اس فٹ پاتھ پر زندہ لاش نہ بنی ہوتی۔ میرا باپ سلاخوں کے پیچھے ہے اور میری ماں دیوانگی کی دنیا میں گم ہو چکی ہے، اور میں موت کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ سنو اس بھوک کی کہانی جس نے انسانوں کو بھیڑیا بنا دیا تھا۔ میرا نام سمیرا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے گھر میں غربت کا راج دیکھا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں کبھی کبھی ہمارے گھر میں اچھا کھانا بھی پکتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ حالات نے ایسی کروٹ لی کہ سب کچھ بکھر گیا۔ ابا کی دہاڑی دار مزدوری سے گھر کا چولہا جلنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اکثر راتوں کو ابا اور اماں کی سرگوشیاں سنتی تھی۔ ایک رات ابا تھکے ہارے گھر آئے اور چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولے، شاہدہ اب گزارا ممکن نہیں رہا، قرض خواہ روز دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، میری عزت اب خطرے میں ہے۔ اماں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، تو اب کیا کریں گے ہم؟ گھر میں تو راشن بھی ختم ہونے والا ہے۔ ابا نے سر جھکا لیا اور بھاری آواز میں بولے، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ گھر بیچ دوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ قرض اتار دیں گے اور باقی پیسوں سے کوئی چھوٹا کام شروع کر لوں گا، ہم کرائے کے مکان میں رہ لیں گے۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اپنا گھر تو چھت ہوتی ہے، مگر حالات کے جبر نے ابا کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گھر بک گیا، قرض اتر گئے، مگر وہ چھوٹا کام جو ابا نے شروع کرنا تھا وہ نہ ہو سکا، کیونکہ مہنگائی کے طوفان نے وہ پیسے بھی نگل لیے۔ ہم ایک تنگ اور پرانے محلے میں کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ یہ مکان بہت چھوٹا اور خستہ حال تھا، 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا صحن، مگر مصیبت یہ تھی کہ اب ہمارے سر پر کرائے کی تلوار بھی لٹک رہی تھی۔ ابا روز صبح سویرے مزدوری کی تلاش میں نکلتے، کبھی کام ملتا اور کبھی خالی ہاتھ واپس لوٹ آتے۔ جس دن کام ملتا اس دن گھر میں روٹی پکتی، اور جس دن کام نہ ملتا ہم پانی پی کر سو جاتے۔ میں نے میٹرک امتحانات دے دیے تھے، مگر اس سے آگے پڑھنا اب میرے لیے خواب بن چکا تھا۔ ایک دن میں نے ابا سے کہا، ابا میں کالج میں داخلہ لے لوں، سرکاری کالج کی فیس کم ہوتی ہے۔ ابا نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ بولے، بیٹی فیس تو کم ہے، مگر کتابیں، یونیفارم اور آنے جانے کا کرایہ کہاں سے آئے گا؟ تم دیکھ رہی ہو کہ 2 وقت کی روٹی پوری کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں چپ ہو گئی، مجھے اپنی خواہش کا گلا گھونٹنا پڑا۔ گھر کے حالات دن بدن مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اسی دوران اماں کی طبیعت بگڑنے لگی، انہیں کھانسی کے دورے پڑنے لگے۔ رات بھر وہ کھانستی اور میں اور ابا بے بسی سے انہیں دیکھتے رہتے۔ ایک رات اماں کی طبیعت بہت خراب تھی، ابا ان کے سرہانے بیٹھے ان کا سر دبا رہے تھے۔ اماں نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے کہا، حاجی صاحب مجھے لگتا ہے اب میرا وقت قریب ہے، دوائی کے پیسے تو ہے نہیں، بس دعا کریں کہ موت آسانی سے آ جائے۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ غصے اور دکھ سے بولے، ایسی باتیں مت کرو شاہدہ، میں کل صبح ہی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، چاہے مجھے بھیک مانگنی پڑے۔ لیکن اگلے دن بھی ابا کو کام نہیں ملا۔ وہ شام کو خالی ہاتھ لوٹے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ابا میں نے سوچا ہے کہ میں کچھ کام کر لوں، محلے کے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچرز کی ضرورت ہے، میں وہاں بات کرتی ہوں۔ ابا نے پہلے تو منع کیا، مگر مجبوری کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ میں اگلے دن اسکول گئی اور پرنسپل سے ملی۔ تنخواہ بہت کم تھی، مگر ہمارے لیے وہ بھی غنیمت تھی۔ میں نے چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ پہلا مہینہ تو جیسے تیسے گزر گیا۔ مجھے تنخواہ ملی تو ہم نے راشن خریدا اور اماں کے لیے کھانسی کا شربت لائے۔ گھر میں تھوڑا سکون آیا، لیکن یہ خوشی عارضی تھی۔ اسکول کے پرنسپل کا رویہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ ایک دن پرنسپل نے مجھے اپنے آفس میں بلایا۔ وہ کرسی پر بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی روکھے لہجے میں بولی، سمیرا تم کل سے اسکول مت آنا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، میڈم مگر کیوں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ انہوں نے فائل بند کی اور میری طرف دیکھا۔ تمہاری تعلیم صرف میٹرک ہے، والدین شکایت کر رہے ہیں کہ ٹیچر کم پڑھے لکھے ہیں، ہمیں BA پاس ٹیچر چاہیے، اس لیے ہم تمہیں مزید نہیں رکھ سکتے۔ میں نے ان کی منت کی اور روتے ہوئے کہا، میڈم پلیز ایسا نہ کریں، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، میں بہت محنت کروں گی۔ مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اسی وقت نوکری سے فارغ کر دیا۔ میں روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ابا مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹی، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے ہچکیوں کے درمیان بتایا، ابا انہوں نے مجھے نکال دیا، اب ہم کیا کریں گے؟ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، اللہ مالک ہے بیٹی، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ لیکن راستہ نکلنے کی بجائے بند ہوتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے اور ہم مکان کا کرایہ ادا نہ کر سکے۔ مالک مکان ملک صاحب ایک سخت مزاج آدمی تھے۔ وہ روز صبح شام آ کر دروازے پر شور مچاتے تھے۔ آج صبح بھی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں اور اماں سہم گئے۔ ابا نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سامنے ملک صاحب کھڑے تھے، ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ملک صاحب نے ابا کو دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا، شاہ صاحب شرافت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے،
2 महीने हो गए हैं, किराए का नामो निशान नहीं। आज मुझे किराया चाहिए, वरना अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। अब्बा ने हाथ जोड़ दिए। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मलिक साहब, आप जानते हैं कि हालात कितने ख़राब हैं। मंडी में काम नहीं मिल रहा, मेरी बीवी बीमार है। खुदा के लिए मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दें। मलिक साहब ने हकारत से अब्बा को देखा। बहाने मत बनाओ, मुझे पैसों से गर्ज है, तुम्हारी बीमारियों से नहीं। अगर किराया देने की औकात नहीं थी तो मकान किराए पर लिया ही क्यों था? अब्बा की आंखें झुक गईं। मैं दरवाजे की ओट में ये सब देख रही थी और मेरा खून खोल रहा था। गुर्बत इंसान की इज्जत नफ्स को कैसे कुचल देती है, ये मैं अपनी आंखों से देख रही थी। मलिक साहब ने उंगली उठाकर वार्निंग दी। देखो शाह साहब, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, परसों तक मुझे पिछला सारा किराया चाहिए, वरना मैं पुलिस लेकर आऊंगा और तुम्हारा सामान सड़क पर फेंक दूंगा। ये कहकर वो पैर पटकते हुए चले गए। अब्बा वहीं दहलीज पर बैठ गए। उन्होंने सर घुटनों में दे दिया। मैं दौड़कर उनके पास गई। अब्बा, आप ठीक तो हैं? अब्बा ने सर उठाया तो उनका चेहरा पसीने से शरबूर था। उनका सांस फूल रहा था। बीपी हाई होने की वजह से उनकी हालत गैर हो रही थी। मैं जल्दी से पानी लेकर आई। अब्बा ने पानी पिया और दीवार से टेक लगा ली। अब उनसे मजदूरी भी नहीं होती थी। कमजोरी और परेशानी ने उन्हें निचोड़ कर रख दिया था। शाम को घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। अम्मा ने पुराने चावल उबाले थे, वही हमने नमक डालकर खाए। रात को अब्बा सेहन में टहल रहे थे। मैं उनके पास गई। अब्बा, अब क्या होगा? परसों मलिक साहब फिर आएंगे। अब्बा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वीरानी थी। हमें कल फिर मंडी जाऊंगा, किसी से उधार मांगूंगा, शायद कोई तरस खाकर मदद करते। लेकिन अगले 2 दिन अब्बा सुबह जाते और शाम को खाली हाथ वापस आते। उधार तो दूर की बात, कोई सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं था। हमने जिन लोगों से पहले कर्ज लिया हुआ था वो अब तकाजा करने लगे थे। तीसरे दिन सुबह सवेरे फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ये दस्तक नहीं थी बल्कि हमारी बर्बादी का ऐलान था। मालिक मकान मलिक साहब अपने साथ 2 आदमियों को लेकर आए थे। उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। निकलो बाहर, बहुत हो गया ड्रामा। आज मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। अब्बा लड़ते कदमों से बाहर निकले। मैं और अम्मा भी पीछे पीछे गई। मलिक साहब ने अब्बा का गिरबान पकड़ने की कोशिश की, मगर फिर रुक गए। सामान निकालो अपना, अभी और इसी वक्त। अब्बा उनके पैरों में गिरने वाले हो गए। मलिक साहब, खुदा का खौफ करें, मेरी जवान बेटी और बीमार बीवी है। मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? मुझे सिर्फ 2-4 दिन का टाइम और दे दें। मैं वादा करता हूँ कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके आपको दे दूंगा। मलिक साहब ने सख्ती से कहा। कौन देगा तुम्हें पैसे? पूरे मोहल्ले में तुम बदनाम हो चुके हो। हर दुकानदार का तुम पर उधार है। मैं मजीद बेवकूफ नहीं बनूंगा। बाबा ने रोते हुए कहा। मैं कसम खाता हूँ, बस 4 दिन। अगर 4 दिन में पैसे न दूं तो आप जो चाहे कर लीजिएगा। मेरा सामान बाहर फेंक दीजिएगा। बस 4 दिन की मोहलत दे दें। मलिक साहब ने अपने साथ आए हुए आदमी की तरफ देखा और फिर अब्बा की हालत देखकर शायद उन्हें कुछ रहम आ गया, या वो मजीद तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। ठीक है, 4 दिन, सिर्फ 4 दिन है। अगर जुमेरात की शाम तक किराया मेरे हाथ में ना हुआ तो जुमे की सुबह तुम सड़क पर होगे, और ये मेरी आखिरी बात है। वो लोग चले गए, मगर हमारे लिए एक नई मुसीबत छोड़ गए। 4 दिन में 2 महीनों का किराया और बिजली का बिल कैसे अदा होगा? ये नामुमकिन था। अब्बा सेहन में बैठकर रो रहे थे। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? मैं अपनी बच्ची और बीवी को लेकर कहाँ जाऊं? मौत क्यों नहीं आ जाती हमें? अम्मा भी चारपाई पर लेटी रो रही थी। घर का माहौल ऐसा था जैसे सफ़े मातम बिछी हो। भूख और खौफ ने हमारे चेहरों की रौनक छीन ली थी। अब्बा ने भी आंसू पोंछे और अज़्म से बोले, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। मैं अपने पुराने दोस्तों के पास जाऊंगा, शायद कोई मदद कर दे। लेकिन अब्बा की ये उम्मीद भी खाम ख्याल साबित हुई। अगले 3 दिन अब्बा ने शहर का कोना कोना छान मारा। वो हर उस शख्स के पास गए जिससे जरा सी भी उम्मीद थी, लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। लोग अब अब्बा को देखकर रास्ता बदल लेते थे। दुकानदार अब्बा को देखते ही उधार का तकाजा शुरू कर देते थे। नौबत यहाँ तक आ गई कि राशन वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया। घर में आटा खत्म हो चुका था। चौथे दिन की शाम आ गई। कल जुमा था और कल हमें मकान खाली करना था। अब्बा जब घर लौटे तो वो बिल्कुल टूट चुके थे। वो खाली हाथ थे और उनकी आंखों में शिकस्त थे। उन्होंने घर में दाखिल होकर दरवाजा बंद किया और वहीं जमीन पर बैठ गए। कोई नहीं देता उधार, सबने मुंह फेर लिया। कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं। मैं और अम्मा खामोश खड़े थे। हमारे पेट में भूख के मरोड़ उठ रहे थे, मगर उस वक्त छत छिन जाने का खौफ भूख से ज्यादा बड़ा था। अब्बा ने दीवार पर सर मारा। मैं नाकाम हो गया। मैं तुम लोगों को छत नहीं दे सका। कल हम सड़क पर होंगे, लोग तमाशा देखेंगे। अम्मा ने आगे बढ़कर अब्बा के कंधे पर हाथ रखा। हौसला करें हाजी साहब, अल्लाह कोई सबब बना देगा। अब्बा ने तलखी से हंसते हुए कहा। कौन सा सबब शाहिदा? कल सुबह वो आएगा और हमें निकाल देगा। हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। रात गहरी हो चुकी थी। घर में खाने के लिए एक नवाला तक नहीं बचा था। हम तीनों भूखे पेट अपने अपने बिस्तरों पर लेटे छत को घूर रहे थे। नींद किसी की आंखों में नहीं थी। मौत का सन्नाटा था और कल की रुसवाई का डर। तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उस वक्त कौन हो सकता है? मलिक साहब तो सुबह आने वाले थे। अब्बा चौंक कर उठे। सुमेरा, देखो कौन है। मैंने सहमे हुए लहजे में कहा। अब्बा, मुझे डर लग रहा है। इस वक्त कौन आएगा?
कहीं पुलिस तो नहीं? अब्बा ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। अब्बा ने लरजते हाथों से कुंडी खोली। दरवाज़ा खुला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। उसके कंधे पर एक बैग था और हुलिया सफ़र वाला था। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर वो कोई मकामी आदमी नहीं लग रहा था। अब्बा ने हैरत से पूछा, जी भाई, कौन हो आप और इस वक्त क्या चाहिए? इस मुसाफिर ने नरम लहजे में कहा, बाबा जी, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त तंग किया। मैं एक मुसाफिर हूँ, दूसरे शहर जा रहा था, मगर मेरी बस निकल गई। इस शहर में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैंने यहाँ रोशनी देखी तो दरवाज़ा खटखटा दिया। क्या मुझे आज रात के लिए सर छुपाने की जगह मिल सकती है? सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। अब्बा एक लम्हे के लिए हिचकिचाए। घर के हालात ऐसे थे कि हम खुद अपनी पनाह ढूंढ रहे थे, किसी और को क्या पनाह देते। लेकिन फिर अब्बा ने सोचा कि शायद अल्लाह ने हमारी मदद के लिए कोई वसीला भेजा हो, और वैसे भी हमारे पास खोने के लिए अब बचा ही क्या था जो चोरी हो जाता। अब्बा ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। आ जाओ बेटा, अल्लाह का घर है, आ जाओ। वो नौजवान शुक्रिया अदा करके अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदर आते ही हवा का एक झोंका आया। हमें क्या मालूम था कि यह हवा का झोंका नहीं, बल्कि तूफान का पेशखैमा है जो हमारे घर की बुनियादें उखाड़ फेंकेगा। अब्बा ने एक लम्हे के लिए उस अजनबी को सर से पैर तक देखा। वो कोई 25-26 साल का खुशशक्ल नौजवान था। उसका लिबास शस्ता था और कंधे पर लटका हुआ बैग ज़ाहिर भारी महसूस होता था। अब्बा के जहन में एक ही ख्याल आया कि हमारे घर में है ही क्या जो ये ले जाएगा। टूटी हुई चारपाइयाँ और खाली बर्तनों के सिवा हमारे पास कोई कीमती शय नहीं थी। और फिर एक रात को तो बात थी, सुबह होते ही उसने चले जाना था। अब्बा दरवाजे से एक तरफ हटे और धीमे लहजे में बोले, आ जाओ बेटा, गरीब खाना है लेकिन छत मुयस्सर है। वो नौजवान मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकावट के आसार थे, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। वो सीधा सेहन में बिछी चारपाई की तरफ बढ़ा। बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने इस वक्त मुझे पनाह देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे बस रात गुजारनी है, सुबह पहली गाड़ी से निकल जाऊंगा। अम्मा ने जल्दी से अपने सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और कोने में सिमट गई। मैं बावर्ची खाने के दरवाजे में खड़ी उसे देख रही थी। वो अपना बैग साथ रखकर चारपाई पर बैठ गया। अब्बा ने शर्मिंदगी से कहा, बेटा, हमारे पास कोई अलग कमरा तो नहीं है, बस ये एक छोटा कमरा है और ये सेहन है। तुम चाहो तो कमरे में आराम कर लो, हम सेहन में सो जाएंगे। नौजवान ने फौरन हाथ हिलाया। नहीं बाबा जी, मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं यहीं सेहन में ठीक हूँ। बस थोड़ा पानी मिल जाए तो मेहरबानी होगी। मैं जल्दी से मिट्टी का प्याला भरकर पानी ले आई। उसने एक ही सांस में पानी पिया और प्याला मुझे वापस करते हुए शुक्रिया कहा। उसका अंदाज बहुत शाइस्ता था। वो किसी अच्छे और खाते पीते घराने का लगता था। कुछ देर अब्बा उसके पास बैठे और इधर उधर की बातें करते रहे। वो बता रहा था कि वो शहर में काम के सिलसिले में आया था और अब वापस जा रहा था। थोड़ी देर बाद अब्बा उठकर अम्मा के पास आए। अम्मा चूल्हे के पास बैठी खाली देगची को हसरत से देख रही थी। घर में पकाने को कुछ नहीं था और मेहमान घर में बैठा था। अब्बा ने सरगोशी में अम्मा से कहा, शाहिदा, अब क्या करें? घर में तो सूखी रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। मेहमान से क्या कहेंगे कि खाना नहीं है? ये तो हमारी नाक कट जाएगी। अम्मा की आंखों में आंसू तैरने लगे। हाजी साहब, मैं क्या करूं? आप जानते हैं कि डिब्बे में आटा खत्म है, दुकान वाला उधार नहीं देता। अब इस लड़के के सामने हम क्या मुंह लेकर जाएंगे? मैं तो शर्म से जमीन में गुड़ी जा रही हूँ। अब्बा ने बेबसी से अपने दोनों हाथ आपस में रगड़े। अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त हो जाती है, मगर मेहमान को भूखा कैसे सुलाए? उन दोनों की आवाज़ें बहुत धीमी थी, मगर सहन में खामोशी इतनी थी कि शायद वो नौजवान सब सुन रहा था। अचानक चारपाई से उसके उठने की आवाज़ आई। हम तीनों चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। वो चलता हुआ अब्बा के करीब आया और अपनी जेब से कुछ नोट निकालकर अब्बा के हाथ में थमा दिए। बाबा जी, ये रखें। अब्बा ने हैरत से नोटों को और फिर उस नौजवान को देखा। ये क्या है बेटा? इस नौजवान ने बहुत मोहब्बत से अब्बा के कंधे पर हाथ रखा। मैंने अभी आपकी बातें सुन ली थी। आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल मेरे बाप जैसे हैं। अगर मेरा बाप जिंदा होता तो मैं उससे भी यही कहता। ये पैसे रखें और बाहर होटल से खाना ले आए, अच्छा सा खाना। मैं भी खाऊंगा और आप सब भी खाइएगा। मुझे बहुत भूख लगी है। अब्बा का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। उन्होंने नोट वापस करने की कोशिश की। नहीं बेटा, हम तुमसे पैसे कैसे ले सकते हैं? तुम हमारे मेहमान हो। हमारा फर्ज है कि तुम्हारी खिदमत करें, ना कि तुमसे पैसे लें। नौजवान ने जबरदस्ती अब्बा की मुट्ठी बंद कर दी। बाबा जी, ये मत सोचें कि मैं मेहमान हूँ। समझ लें कि आज मेरी तरफ से दावत है। मैं अकेला खाना नहीं खा सकता। प्लीज़ अब देर मत करें, मुझे और आप सबको खाने की ज़रूरत है। अब्बा की आंखों में नमी आ गई। भूख और मजबूरी ने अब्बा की खुददारी को शिकस्त दे दी। उन्होंने वो पैसे रख लिए। जीता रह बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे, मैं अभी लेकर आता हूँ। अब्बा तेजी से बाहर निकल गए। वो नौजवान वापस जाकर अपनी जगह बैठ गया। मैंने महसूस किया कि वो बार बार हमारे घर की दरों दीवार को बहुत गौर से देख रहा था, जैसे किसी चीज़ की तलाश में हो। थोड़ी देर बाद अब्बा खाना लेकर आ गए। होटल से गर्मा गर्म रोटियों और सालन की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया। कई दिनों बाद हमारे घर में ऐसा खाना आया था। मैंने जल्दी से दस्तरख्वान बिछाया। उस नौजवान ने कहा, मैं ज़रा हाथ मुँह धो लूँ और फ्रेश हो जाऊँ, तब तक आप खाना लगाएं। अब्बा ने कहा,
बेटा, वो सामने गुस्ल खाना है, तुम हो आओ, मैं तब तक पानी का इंतजाम करता हूँ। वो नौजवान अपना बैग उठाकर कमरे में रखने लगा। बाबा जी, मैं अपना बैग अंदर रख दूँ? हाँ हाँ बेटा, अंदर चारपाई पर रख दो। वो अंदर गया और बैग रखकर बाहर निकल गया और सीधा गुस्ल खाने की तरफ चला गया। अब्बा और अम्मा सहन में खाने के बर्तन सीधे करने लगे। मेरी नज़र कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी। एक अजीब सी कशिश मुझे अंदर खींच रही थी। मैं दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। उसका बैग चारपाई पर पड़ा था। शायद जल्दी में उससे बैग की जिप पूरी बंद नहीं हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने इधर उधर देखा और फिर लड़ते हाथों से बैग की जिप थोड़ी सी सरकाई। मेरा मुंह हैरत और सदमे से खुले का खुला रह गया। बैग के अंदर कपड़ों के नीचे नोटों की गड्डियां ठुसी हुई थी। इतने सारे पैसे, हजार हजार के नोटों के बंडल। मैंने जिंदगी में इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। मेरा सर चकराने लगा। ये कोई मामूली मुसाफिर नहीं था, ये तो चलता फिरता खजाना था। मैंने जल्दी से जिप बंद की और भागती हुई बाहर आई। मेरा सांस फूल रहा था। अम्मा और अब्बा सहन में बैठे थे। मैं सीधा अम्मा के पास गई और उनका बाजू पकड़कर खींचा। अम्मा, जरा इधर आए, जल्दी। अम्मा घबरा गई। क्या हुआ सुमेरा, खैरियत तो है? मैं उन्हें खींचते हुए बावर्ची खाने की तरफ ले गई। अब्बा भी देख रहे थे। मैंने दबी आवाज में कहा, अम्मा, आपको पता है वो जो अंदर कमरे में मेहमान का बैग पड़ा है, उसमें क्या है? अम्मा ने मुझे घूरा। तेरे दिमाग में फिर कोई फतूर आया है? किसी के सामान को हाथ लगाना गुनाह है। मैंने बेसब्री से कहा, अरे अम्मा, गुनाह सवाब छोड़ें, इस बैग में नोटों की गड्डियां हैं। इतना पैसा है कि अगर हम गिनने बैठे तो सुबह हो जाए। ये मुसाफिर बहुत अमीर है। अम्मा की आंखें फैल गईं। क्या कह रही है तू? सच में? मैंने कसम खाई। अम्मा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हजारों नहीं लाखों रुपए हैं। अगर ये पैसा हमारे पास आ जाए तो हमारे सारे दिन फिर जाएंगे। वो मलिक साहब जो कल हमें घर से निकालने वाले हैं, हम उनके मुंह पर किराया मारेंगे। अम्मा ने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। चुप कर जा मनहूस, कैसी बातें कर रही है? वो हमारा मेहमान है, उसके पैसे पर नजर रखना हराम है। अल्लाह जब देगा हम तब लेंगे, हम चोर नहीं हैं। मैंने अम्मा का हाथ हटाया। मेरी आंखों में अब भूख नहीं बल्कि हवस नाच रही थी। अम्मा, कौन सा अल्लाह देगा? कल सुबह हम सड़क पर होंगे, अब्बा की इज्जत खाक में मिल जाएगी। ये मौका खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आया है। वो मुसाफिर है, आज यहाँ है, कल कहीं और होगा, किसी को क्या पता चलेगा। इसी वक्त अब्बा भी हमारे पास आ गए। उन्होंने हमारी बातें सुन ली थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा साया लहरा रहा था। क्या बातें हो रही हैं? सुमेरा क्या कह रही है? मैंने अब्बा की तरफ देखा। अब्बा, उस लड़के के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा कि हम अपना नया घर खरीद सकते हैं, आपका कर्ज उतर सकता है, आपका इलाज हो सकता है। हम क्यों धक्के खा रहे हैं जब हमारी छत के नीचे इतना खजाना पड़ा है? अब्बा ने सख्ती से कहा, सुमेरा, होश में रहो। हम गरीब जरूर हैं मगर बेईमान नहीं है। वो लड़का हम पर भरोसा करके यहाँ रुका है, उसने हमें खाना खिलाया है। मैं रूहान सी हो गई। अब्बा, खाना खिलाने से हमारे मसले हल नहीं होंगे। कल जब मलिक साहब हमारा सामान बाहर फेंकेंगे तब ये शराफत कहाँ जाएगी? ये लड़का तो सुबह चला जाएगा अपने नोटों से भरा बैग लेकर, और हम यही सड़कों पर रुल जाएंगे। सोचें अब्बा, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अम्मा ने घबराते हुए कहा, नहीं हाजी साहब, बच्ची नादान है, आप इसकी बातों में ना आए। लालच करना अच्छी बात नहीं है। मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अब्बा खामोश हो गए। वो गहरी सोच में डूब गए थे। उनकी नजरें खला में जमी थी और माथे पर पसीने के कतरे नमदार हो रहे थे। शैतान अब उनके जहन में भी वसवसे डाल रहा था। गुर्बत और मजबूरी इंसान को दरिंदा बना देती है, और उस वक्त अब्बा के चेहरे पर वो कशमकश साफ दिखाई दे रही थी। मैंने फिर से कहा, अब्बा, सोचने का वक्त नहीं है। वो लड़का अभी वॉशरूम में है, वो बाहर आएगा, खाना खाएगा और सो जाएगा। हमें बस कुछ करना है। हम उससे मांग तो नहीं सकते, वो क्यों देगा? बस हमें ही कोई रास्ता निकालना होगा। अम्मा ने लड़ती आवाज में कहा, सुमेरा, तू क्या चाहती है? हम चोरी करें? मैंने अम्मा की आंखों में आंखें डालकर कहा, चोरी नहीं अम्मा, अपना हक समझ ले। दुनिया ने हमें बहुत लूटा है, अब हमारी बारी है। बस ये सोच लें कि यह सब पैसा हमारी किस्मत बदलने आया है। तभी गुस्ल खाने का दरवाजा खुलने की आवाज आई। हम तीनों चौंक गए। अब्बा ने जल्दी से इशारा किया कि खामोश हो जाओ। अब्बा ने सरगोशी में कहा, खाना खाते हैं, बाद में बात करेंगे। वो लड़का मुस्कुराता हुआ बाहर आया। उसका चेहरा धुला हुआ था और वो बहुत तरोताज़ा लग रहा था। उसे क्या मालूम था कि जिन लोगों को उसने खाना खिलाया है वही अब उससे नवाला बनाने का सोच रहे हैं। आए बाबा जी, खाना ठंडा हो रहा है। उसकी आवाज़ में इतनी अपनायत थी मगर मेरे कानों में अब सिर्फ नोटों की सरसराहट गूंज रही थी। अब्बा खामोशी से जाकर दस्तरख्वान पर बैठ गए। अम्मा के हाथ कांप रहे थे जब वो रोटी तोड़ रही थी। मैं कोने में बैठी उस लड़के को देख रही थी, मगर अब मुझे उसमें इंसान नहीं बल्कि अपनी मुश्किलात का हल नजर आ रहा था। अब्बा ने लुकमा मुंह में डाला मगर वो निगल नहीं पा रहे थे। उनकी नजरें बार बार उस कमरे की तरफ जा रही थी जहां वो बैग रखा था। शैतान अपना काम कर चुका था। अब्बा के अंदर का शरीफ आदमी दम तोड़ रहा था
और मजबूरी का सांपपन फैला रहा था। अब्बा के अल्फाज ने मेरे अंदर के इंसान को झंझोड़ कर रख दिया था, मगर मेरी आंखों पर पड़ी लालच की पट्टी इतनी मोटी थी कि मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। अब्बा ने अम्मा को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और दबी हुई आवाज में बोले, जिनमें खौफ और हवस की मिलीजुली कैफियत थी, शाहिदा, मेरी बात गौर से सुनो। ये मौका बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। वो लड़का मुसाफिर है और इस शहर में अजनबी है। अगर वो यहाँ से चला गया तो अपने साथ वो तमाम दौलत भी ले जाएगा जो हमारी जिंदगी संवार सकती है, लेकिन अगर वो हमें हमेशा के लिए खामोश हो जाए तो वो दौलत हमारी हो सकती है। अम्मा का चेहरा फक हो गया था। उन्होंने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की और लड़ती हुई आवाज में बोली, हाजी साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम गरीब जरूर हैं, मगर हम कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है। किसी की जान लेना कोई मामूली बात नहीं है। मेरा दिल की गवाही नहीं देता। हमें अल्लाह से डरना चाहिए। अब्बा ने सख्ती से अम्मा का मुंह बंद करने की कोशिश की। उनकी आंखों में वहशत उतर आई थी। वो बोले, डरना तो मुझे इस जिल्लत से है जो कल सुबह मेरा इंतजार कर रही है। जब वो मलिक साहब मेरा सामान गली में फेंकेंगे और लोग तमाशा देखेंगे, तब तुम्हारा अल्लाह का डर कहाँ जाएगा? ये लड़का हमारे लिए कोई रिश्तेदार नहीं है, बस एक रात का मेहमान है। उसके खाने में वो दवा मिला देने से जो घर में चूहों के लिए रखी थी, ना शोर होगा ना किसी को खबर होगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। मैंने भी अब्बा की तायद की। मेरा ज़मीर कहीं सो चुका था। मुझे सिर्फ वो बैग और उसमें रखे नोट नजर आ रहे थे। अम्मा बस करें अब, ये जज्बाती बातें छोड़ दें। पैसे के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये तो फिर भी एक अनजान मुसाफिर है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो कल हम खुद सड़कों पर रुल रहे होंगे। क्या आप चाहती हैं कि मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करूं और अब्बा भीख मांगे? अम्मा बेबसी से कभी मुझे देखती और कभी अब्बा को। उनकी मुज़ाहमत दम तोड़ रही थी। गुर्बत ने उनके अंदर की ममता और इंसानियत को कमजोर कर दिया था। अब्बा ने अलमारी के ऊपर से वो छोटी सी पुड़िया उतारी जिसमें वो मोहलिक सफूफ था जो जान लेने के लिए काफी था। अब्बा के हाथ कांप रहे थे, मगर उनका इरादा पक्का था। अब्बा ने वो पुड़िया अम्मा के हाथ में थमाई और बोली, इसके हिस्से की सालन में ये मिला दो। याद रखना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो जिंदा बच गया तो हम सब जेल में होंगे। अम्मा ने वो पुड़िया ऐसे पकड़ी जैसे कोई जलता हुआ अंगारा हो। उनकी आंखों से आंसू जारी थे। वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी तो उनके कदम मन भर के हो रहे थे। मैं उनके पीछे गई। मुझे डर था कि कहीं अम्मा का दिल न पसीज जाए और वो ऐन वक्त पर पीछे न हट जाए। बावर्ची खाने में मध्यम सी रोशनी थी। अम्मा ने देगची से सालन एक अलग प्लेट में निकाला। उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने पुड़िया खोली और वह सफ़ेद पाउडर सालन में डाल दिया। चम्मच हिलाते हुए अम्मा की हिचकियां बन गई। सुमेरा, ये हम क्या कर रहे हैं? हम एक इंसान को मार रहे हैं। वो लड़का कितना मासूम है। उसने हमें खाना खिलाया और हम उसे मौत खिला रहे हैं। मैंने जल्दी से अम्मा के कंधे पर हाथ रखा और सख्ती से कहा, अम्मा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बस ये सोचें कि ये दवा नहीं, हमारी खुशियों की चाबी है। जल्दी करें, वो बाहर इंतजार कर रहा होगा। हमने खाना तैयार किया और सेहन में ले आए। वो नौजवान अभी तक वहीं चरपाई पर बैठा हमारा इंतजार कर रहा था। हमें देखते ही उसके चेहरे पर एक दिलनशीन मुस्कुराहट फैल गई। उसे क्या खबर थी कि जिस मुस्कुराहट से वो हमारा इस्तकबाल कर रहा है, हम उसके जवाब में उसके लिए अब्दी नींद का सामान लाए हैं। वो उठकर हमारे करीब आया और बोला, अरे अम्मा जी, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मैं खुद लिया था। आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। मुझे आपको काम करते देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसके मुंह से माँ का लफ्ज सुनकर अम्मा के हाथ से प्लेट छूटते छूटते बची। अब्बा ने जल्दी से आगे बढ़कर खाना दस्तरखान पर रखा और खुद को पुरसुकून जाहिर करने की कोशिश की। बेटा, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। तुम बैठो, हम सब मिलकर खाते हैं। हम सब दस्तरखान के गिर्द बैठ गए। अब्बा ने वो मखसूस प्लेट जिसमें दवा मिलाई थी बड़ी होशियारी से उस नौजवान के सामने रख दी। मेरा दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी धड़कन की आवाज़ सबको सुनाई दे रही है। वो नौजवान खाने की खुशबू सूंघकर मुस्कुराया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी माँ के हाथ के खाने से आती थी। अम्मा जो सर झुकाए बैठी थी अचानक चौंक उठी। उन्होंने नजर उठाकर उस लड़के को देखा। उस लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक और अपनायत थी। अम्मा का दिल जोर से धड़का। बेटा, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? अम्मा ने बेख्तियार पूछा। हालांकि अब्बा उन्हें आंखों ही आंखों में मना कर रहे थे कि ज्यादा बातचीत ना करें। उस नौजवान के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। उसने उदासी से कहा, मेरे माँ बाप बहुत पहले मुझसे बिछड़ गए थे, या यूं समझ लें कि मैं उनसे बिछड़ गया था। गुर्बत और मजबूरी ने हमें जुदा कर दिया था। लेकिन आज मुझे आप दोनों को देखकर लग रहा है जैसे मैं अपने घर में हूँ। आपके चेहरे पर वही नूर है जो मेरी माँ के चेहरे पर था। ये सुनकर अम्मा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उनका दिल मुट्ठी में आ गया। एक अनजान लड़के की बातों में इतनी तासीर थी कि पत्थर दिल में पिघल जाए। अम्मा को रोता देखकर वो लड़का परेशान हो गया। अम्मा जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अब्बा ने फौरन बात संभाली और अम्मा को घूरा। नहीं बेटा, बस उसे अपने पुराने दिन याद आ गए हैं। तुम खाना शुरू करो, ठंडा हो रहा है। उस नौजवान ने नवाला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर अचानक रुक गया। मेरा सांस हलक में